So the DR was like this. Long, flat, 130 degrees, 27 minutes west, 26 degrees, 27 minutes north, and we came out with 130 degree, 32.6 west. true altitude 27 degrees 49.9 minutes. Angle P was 40 degrees 43.2 minutes. Observed long was 130 degrees 32.6 minute west, and GHA. GHA was 089 degrees 49.4 minute. Declination south. What was LHA? How much was the LHA? 319. 16.8. This is all the information we had. Right. So one part of the question we have solved. We have got observed longitude, and we have to find now the direction of the PL. So how we will find the direction of the PL? We will calculate azimuth first. Azimuth. Azimuth. So azimuth, how do we find by the scientific calculator method? ABC. ABC. So we know the formula of ABC. Yes, sir. A is equal to Tan lat upon tan P. Tan P. B is equal to So tan declination upon sin P. Tan dec upon sin P. And tan azimuth is equal to? So 1 upon C cos lat. 1 upon C into Cos of lat. Cos. Okay. So let us do this one now. We know everything. We have everything with us. We have the latitude from the DR. We have the angle P. We have declination, and we have, that's all I think we need. So in this case, we have taken out angle P already. How will you name the sign ABC? Sir, A is opposite of the latitude. Opposite to latitude. Same name declination. Usually. A is usually opposite of latitude. Usually. But yes, there sir. may be some cases. Yeah. Yes, sir. When Okay, so let us 270 and let us quickly do. Tan latitude is equal to tan 26 degrees 27 minute upon
tan 40 degrees 43.2 minutes. How much is this? Sir, 0.5784. 0.57 84. 84, but depending upon the digit what you take, 0.779, 8. If you take 5 digits, you will get good answer. What will you name this as? The south. South. South, because latitude is north. South. Sometimes for the value of A, you will get minus over here. Read the note in the book. The notes written are very important. Just below the formula of A, B, and azimuth, there's a small note over there. If LHA is less than 180, P is equal to LHA. If LHA is more than 180, P is equal to 360 minus LHA. Naming of A, B, and azimuth is discussed, given in the book also. A is usually opposite to latitude, B same name as deck. And for the azimuth, how you will do it? You will add or subtract. Same name, add, different name, subtract. Same name add, different name subtract. Where is that formula explained? Where it says written before? Can anyone take out that page? Sir, 122. So I don't know how it is in this book. Sir, in the chapter astronomical LOP theory. Yeah. Where A is normally named opposite to lat when LHA is between 270 and 090. If you remember, we discussed this earlier. If LHA is between 270 and 90, A is normally named opposite to this. How much is LHA over 319? So if you remember this diagram, I told you this is the observer's meridian. LHA goes like this. This is 90. This is 270. And now since we are seeing the body rising east of the horizon as LHA is 319, the body is like this. So if LHA is between 270 and 90, we will name it opposite to the latitude. But if LHA comes between 90 and 270, then we will name it as same name. B is same name as declination. For naming C, if A and B are of the same name, add and retain the name. If contrary, name subtract and keep the name of the larger one. So okay, so let us move on. Actually, that azimuth we have not done, so that's why I wanted to do the azimuth before, because in every question I think we have to calculate azimuth. So maybe next class we will do the azimuth also. But in the old book, I will just give you the page number where the naming technique is explained.
Just now I had it with me. Yeah. Where the azimuth sun is given, no? After latitude by meridian altitude sun, there is azimuth sun. So just below that, this one is explained. Otherwise, next class I will try to explain this to you once again. So we got A, now we will get B. B is equal to tan dec. Tan 21 degrees 36.4 minute upon sin P. Sin P is 40 degrees 43.2 minute. So how much does this come to? 0.607. 0.60712. What is the declination? South. So this will be the same name as declination. Same name as declination. Now we have to find C. This is the value of A, this is the value of B, this is the value of C. C is equal to, if A and B are same name, what will you do? Sir, add. Add. And their opposite name you will subtract. Subtract and Return put the down name it. of the. So 0 S this is correct. 1.18510 south. Yes, sir. So tan azimuth is equal to 1 upon C cos lat. So 1 upon 1.18510 into C cos lat. cos lat. Cos 26 degrees 27 minute. So what is tan azimuth coming? 43 degree 18.3. Tan azimuth is 0.942 whatever. So azimuth will be tan inverse azimuth is equal to how many degrees? 43.3 degrees. Yes? Have you got this or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You have got this. Now, what is the definition of azimuth? Arc of the arc of the rational horizon or Sir, angle at the zenith. Angle at the zenith. between Observer's meridian and the vertical circle passing through the body. so in this diagram I have got azimuth 43. So which will be my azimuth? This side, this side, this side, or this side? Because azimuth is this angle. From the north-south to the east-west. How will I name the azimuth? The prefix is This named is very as important if you similar are to doing red C. circle by ABC method. Pardon? The prefix
prefix is named as C and suffix is named as where is a LHA. So whatever is C, C is south. So south. South 43.3. East or west? Sir, east because LHA is LHA is 270. more than 180. Bodies on this side we saw in the morning, rising sun. So east. South 43.3 degree east. Now I will explain this to you in the rational horizon method also. So your concept and picture in your mind will be very, very clear. And I will try to explain that azimuth also, the naming technique, so that we finish off with this and you can attempt all your questions. So we are still not done. If you ask me the answer, still little bit is left. So if this is the azimuth, what would be the true bearing? South 90 plus 43.3. 180 minus this, Yes, sir. how much is that? So 136 degrees, 42 minutes. 136.7 degrees. Yes, sir. Therefore, PL is equal to 90 plus minus. Yes, sir. Yes. So how you will write the answer? The question was, what is the direction of the PL and through what longitude you will draw it? सर ये प्लस वो कब होगा माइनस होगा ये तो बता दीजिए Yeah. ये प्लस कब होगा माइनस कब होगा 90 प्लस माइनस पोजीशन लाइन तो एक डायरेक्शन में ना. अगर एजिमथ 136, अगर मेरा एजिमथ 136.7 आ गया है तो PL तो मेरा उसके परपेंडिकुलर होगा ना. ये मेरा PL बन गया. यस सर समझ गया क्या डायरेक्शन है PL? वही है ना. जीरो 46, 2 to 6. प्लस माइनस दोनों करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कभी प्लस कभी माइनस. समझ गए? क्योंकि एक्चुअल पोजीशन तो तुम्हारा थोड़ा इधर भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है ना. वो तो जब दूसरा PL के साथ कटेगा तब मालूम पड़ेगा एक्चुअल पोजीशन क्या है. तो आंसर में क्या लिखोगे? दिस इज माय PL थ्रू ऑब्जर्व लॉन्ग कितना था? 130 degree 32. 130 degrees 32.6 minute west. This is your answer. अब इसका अगर मेरे को स्केच बनाना पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगा? DR lat कितना है? 26 degrees 27 minute north. ठीक है ना? Yes, sir. DR long Sir, 130 degrees, 27 minute west. 130 degrees 27 minute west. ऑब्जर्व लॉन्ग क्या है? Sir, 130 degrees, 32.6 minute west.
32.6। इसके लेफ्ट में बनेगा, इसके राइट में बनेगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में सर। लेफ्ट में। क्योंकि वेस्ट में जा रहे हैं ना, 27, 28 ऐसा चलेगा। ऑब्जर्व लॉन्ग 130 डिग्रीज 32.6 मिनट वेस्ट। PL 046,226। ये रफ स्केच बनाओगे तो फुल मार्क्स। PL हमेशा ऑब्जर्व लॉन्ग और DR लेट से बनता है ना, लॉन्ग बैकग्राउंड में, यहाँ से नहीं बन रहा। यस सर। तो एग्जामिनर क्या देखना चाहता है कि तुम्हारा ऑब्जर्व लॉन्ग का कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं, तुमने DR से इधर बनाया कि उधर बनाया, और PL कहाँ से क्रॉस किया। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अभी इसमें मैं तुमको थोड़ा रैशनल होराइजन में भी समझा दूं। अगर आप लोग ये भी समझ जाओगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो कभी तुमको दिक्कत नहीं आएगी। लैटिट्यूड क्या है DR लैट? 26 degree 27 minutes. 26, 27 नॉर्थ। Yes sir. Yes sir. ठीक है। बॉडी का Yes. डिक्लिनेशन क्या है? Sir 21 degrees 36.4 minutes south. 21, 36.4 साउथ। ठीक है। Yes sir. LHA क्या है? 319 degrees 16.8. 319, 16.8। ऑब्जर्वर्स मेडियन से 319, 270 आ गया, 319, 16.8। ऑल्टीट्यूड क्या था बॉडी का? Sir 27 degrees 49.9. तो ये ऑल्टीट्यूड है, चलो ठीक है, ये जेनिथ डिस्टेंस आ गया। विजट एक्स्ट्रा एंगल समझ आ गया, क्लियर? Yes sir. यस सर। अब बताओ बॉडी के अजीमत क्वाड्रेंटल एंगल में कौन से है? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट? Southeast. ऑब्जर्वर से साउथ और ईस्ट में है ना? Yes sir. तो अजीमत आ गया साउथ Yes, ईस्ट, sir. जो तुम्हारा नेमिंग द C एंड LHA। Yes sir. Okay sir. अजीमत तो ये हुआ जो तुम्हारा साउथ 43 डिग्री जो भी आ रहा था ईस्ट, और बेरिंग तो ये हो गया ना 137 जितना भी था। Yes sir. Z एंगल Z हो गया। ये बेरिंग है तो पोजीशन लाइन उसके परपेंडिकुलर है, ±90। तो इतना स्केच भी बना दोगे तो चलेगा, अगर ये बना दिए तो बहुत ही बढ़िया, बट आई डोंट थिंक कहीं पर वो बनाते हैं, बट तुमको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बता दिया है। तो ये ये क्वेश्चन रैशनल होराइजन के डायग्राम से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं? एक्स्ट्रा मार्क तो मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बट तुम्हारे समझने के लिए बेटर है थोड़ा सा। अगर कॉन्सेप्ट तुमको कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी अगर हो रही है समझने में, तो बना लोगे तो तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, कई लड़के बना देते हैं ना, गलत बना देते हैं, जब गलत बन जाता है तो नंबर कट जाता है। नहीं बनेगा तो चलो ठीक है, ये तो फिर बना ही सकते हो ना। शुभ्रा की बुक में क्या लिखा है, कौन सा स्केच बनाना है?
सभी जगह वही नीचे वाला बना था, नीचे वाला। यही है ना? Yes. हाँ, तो उतना तक ही रखो। सो अब देखो, जैसे ये हमने एक एग्जांपल किया, काफ़ी टाइम लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे थे हम लोग। टेबल्स देखने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है आगे पीछे, बट प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट फटाफट होता चला जाएगा। क्योंकि देखो 3 घंटे में तुम्हें 6 क्वेश्चन करने हैं, मैं राइट? तो एक क्वेश्चन में एवरेज कितना मिला? आधा घंटा मिला ना, जिसमें 2 प्रिंसिपल का और 4 प्रैक्टिकल का। प्रिंसिपल वाले में बाई चांस कहीं अटक के टाइम ज़्यादा लग गया तो आधा घंटा प्रैक्टिकल है। मैंने सुबह बोला था 20 मिनट, 20 मिनट में सब वर्किंग करके रखोगे तभी तो बाकी 10 मिनट होगा क्वेश्चन पढ़ने का, आंसर लिखने का, स्केच बनाने का, ये सब समझने का। तो एक्चुअल कैलकुलेशन शुड नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स। तो उसी हिसाब से स्पीड डेवलप करो कि 20 मिनट में सारा हो जाए। और आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं, हो जाता है। 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो ये इसमें 5 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, जरा देखना, अपना बुक निकालना। बुक दिखाई दे रहा है? Yes. बुक में भी देखो वही स्केच दिया, डी आर लेट ऑब्जर्व लॉन्ग। डी आर लॉन्ग भी बनाओगे तो अच्छा है। कहाँ गया एक्सरसाइज? ये तो लॉन्ग बैकग्राउंड सन है, यही देख रहे हैं ना हम लोग। तो 31 अगस्त 92, 4016 साउथ, लॉन्ग बैकग्राउंड सन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। डी आर क्या दिया है? 10 degrees 15 minutes out. और डी आर और तो सर पूरा 0 degree longitude. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं तुमको? फिर अब कैसे पता चलेगा तुम ईस्ट हो कि वेस्ट हो? नहीं पता चलेगा ना। नहीं सर, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो अभी अच्छे से समझ के LHA GHA और वो सब माइनस वगैरह करोगे तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई खास इंडिकेशन नहीं है। ऐसे ही ऊपर वाला लॉन्गिट्यूड देखो 175.31, इसमें Yes. GMT का डेट चेंज होने का बहुत चांस है। डेट लाइन के आसपास है ना, 180 के आसपास, तो इसमें दिन चेंज होने Yes, का sir. बहुत चांस है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा संभल के समझ के करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में तो 85 डिग्री है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वही है। तो हमारा और GMT का तो डेट सेम चलता है, 5.5 घंटे का फ़र्क है। अनलेस मैं कोई ऑब्जर्वेशन करूं रात को 8-9 बजे या सुबह 4 बजे तो GMT चेंज होगा। बट रात को 8-9 बजे, सुबह 4 बजे तो कोई ऑब्जर्वेशन होता नहीं है ना, होराइजन नहीं दिखेगा तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो डेट चेंज होने का चांस कम है मेरा। बट 175 में डेट चेंज होने का चांस बहुत है। तुम 12 घंटे तो पीछे हो ही पक्का। 00 में DR नहीं है तुम्हारे पास, ईस्ट है कि वेस्ट है, वहाँ थोड़ा उलझे रहोगे। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको करो,
पहले एक बार एग्जांपल दोबारा कर लो अगर समझ में थोड़ा सा इश्यू है, और फिर इसको दोबारा कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो अभी एक एक्सरसाइज करना है या मैं वो पहले अजीमत वाला समझा दूं तुमको? जो अजीमत वाला समझ गए हो सब लोग, या दोबारा मेरे को समझाना पड़ेगा नेमिंग टेक्निक? समझ गए सर। हो जाएगा। हो जाएगा, especially that part where it is normally named opposite when LH is between 270 and 90, and same name if LH is between 90 and 270. उस चीज का खाली थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अभी हम अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो मतलब हम पहुंचेंगे नहीं उस पॉइंट तक, तो आई वुड सजेस्ट हो तुम लोग घर पे ही करो, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन ही रह जाएगा। लॉन्ग बैक क्रॉन कोई दूसरा समझ लें सन के बाद वाला, या अभी कोई इट्स टू अर्ली टू डू दैट? मेरा ख्याल पहले ही सर, हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं सर, फिर समझेंगे तो ना ये कंफ्यूजन कर लो। होगा। चलो फिर एक काम करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मैं बोर्ड में नहीं करूंगा, तुम लोग करो, कहीं अटकेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विच वन यू वांट टू डू, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2? 2 करते हैं सर। हाँ चलो 2 कर लो, बट 1 भी जरूरी है जीएमटी का वो डेट निकालने के लिए, उसको भूलना मत। तो वैसे तो सारी कर लेनी चाहिए, 5 में कोई ज़्यादा उतना इशू नहीं है। तो चलो अभी 2 करना है तो 2 कर लो सब लोग। जिनके पास पुरानी किताब है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, यस सर। और जिसके पास ये न्यू बुक है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यही वाला क्वेश्चन करो जिसमें dr लॉन्ग 000 दिया है। हल्का सा डेटा में फ़र्क है, तो जिसको जो सी किताब से करना तुम्हारी मर्जी है कर लो। एल्मनेक सही यूज़ करना, 2008 वाले हो तो 2008 यूज़ करो। आई एम श्योर 2008 एल्मनेक होगी आप लोग के पास। यस सर। 2019 है। नहीं है? क्यों नहीं है? 19 है सर, 19 से करता हूँ। एल्मनेक तो 2008 की भी मार्केट में मिलती थी ना पहले। यस सर, एग्जाम में सर 92 होता है, इसीलिए 92 है। हाँ एग्जाम 92 2008 है सर, कुछ के पास 2008 है सर। हाँ वही कह रहा हूँ, जिसके पास 8 है एल्मनेक भी 8 की होगी उसके पास। सर वैसे कोई ज्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा है सर। नहीं, बट अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आया तो ऐसे क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें 0 दिया। किसी किसी क्वेश्चन में लैटिट्यूड भी 0 होता है दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। तो ऐसे केसेस में एग्जैक्ट आंसर जानना थोड़ा सा जरूरी है। चलो कर लो, स्टार्ट द वर्किंग। 31st August 2008 PM at ship in DR so-and-so. Sextant altitude was given when the chronometer far showed इतना, इसमें फिर क्रोनोमीटर एरर दे दिया। जीएमटी निकाल लो। बाकी क्वेश्चन तो सिमिलर है एक्सेप्ट दैट स्मॉल ट्रिक ओवर देयर। नीचे क्रोनोमीटर दिया, ऊपर में जीपीएस क्लॉक दिया। तो जिसके पास 92 है क्वेश्चन 1 कर लो, 000 लॉन्ग वाला, और जिसका 2008 है क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। अभी हमारे पास 25 मिनट हैं, 20 मिनट 22 तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हो, थोड़ा स्पीड निकालो। इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ा हिंट क्या दिया हुआ है?
एग्जाम्पल में भी था। सर PM लिखा हुआ है। हाँ, PM पहले से ही तुमको बता रहा है। वेरी गुड। PM का क्या मतलब है? इवनिंग का टाइम। सर GMT जो है कि वो GMT time 15 evening. hours That का the sun has GMT already evening. crossed the meridian. Sun has crossed the meridian और वो वेस्ट साइड की तरफ चला गया। वेस्ट साइड की तरफ चला गया तो एंगल P क्या बन जाएगा? LHA एंगल P is equal to एंगल P is equal to LHA। 360 का चक्कर नहीं है। वेरी गुड। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ हिंट रहता ही है क्वेश्चंस में। एंगल P कितना आया था? सर P आया था 46 डिग्री 25.5। LHA सर P के बराबर। LHA और एंगल P is 46 डिग्री 25.5। GHA कितना आया? सर GHA था 46 डिग्री 30.5। 46 डिग्रीज 30.5 30.5। 30 सर 30। 30 पॉइंट, थोड़ा जोर से बोलो, क्लियरली थोड़ा आवाज। सर 30.5 30.5। ओके 30.5। और किसी का कोई डिफरेंट आंसर? ये 2008 होगी किताब। यस सर। ओके । 92 वाला किया किसी ने? 92 किसी का हो गया? सर क्वेश्चन नंबर 2 किया है 2008 से। हाँ 2008 से नंबर 2, 92 से जो कर रहा है नंबर 1। हम लोग वो वाला करें जिसमें DR लॉन्गिट्यूड 0 दिया। सर मैंने किया सर 92 का क्वेश्चन नंबर 1। तुम्हारा क्या है LHA GHA? सर LHA है 47 डिग्री 21, सॉरी LHA सर 47 डिग्री 21.1। GHA 47 डिग्री 25.2। 25.2। यस सर। तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट आया वेस्ट आया? एनोमली कैसे हटाया तुमने? सर लॉन्गिट्यूड वेस्ट ही आएगा। वेस्ट आएगा ना? वेस्ट वेस्ट सर। इसमें तो क्लियर है, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। यस सर लॉन्गिट्यूड वेस्ट। LHA is equal to GHA minus west longitude। GHA ज्यादा आया है तुम्हारा तो वेस्ट लॉन्ग माइनस कर दोगे तो LHA आ जाएगा। Even though the question looked a little like that, हाँ, लेकिन आंसर में क्लैरिटी है। तो लॉन्गिट्यूड क्या बना फिर? 4.1 मिनट। फोर 4.1 मिनट वेस्ट, 0 डिग्रीज 4.1। और इधर क्या बना? पाँच डिग्री।
5 मिनट बनाना, 5 मिनट वेस्ट। ठीक है, आंसर 2008। के हिसाब से ठीक है आंसर, 5 मिनट वेस्ट। कहाँ गए 2008 वाले? और बाकी अजीमत वगैरह निकाल लिया पीएल के लिए या नहीं? कंप्लीट कर लो क्वेश्चन। कृष्ण कुमार उपाध्याय तुम्हारा हो गया या नहीं? मैं पे कर रहा हूँ हाँ कर रहा हूँ सर। कर रहे हो, वेरी गुड। सो ठीक है, ऑल ऑफ यू ट्राई टू डू एज मेनी एज यू कैन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। 5 ही हैं सिर्फ वैसे तो, और कई लोगों ने तो 10 मिनट में ही कर लिया मेरे ख्याल से, या 15-20 मिनट मैक्सिमम। सर मेरा ट्राई टू PR टाइम योरसेल्फ, एक्यूरेटली करो, स्ट्रेट करो, लाइन बना के करो, कॉलम में करो, डायग्राम बनाओ। 5 है, हो सकता है तुम 5 आज कर लो, या 2-3 भी कर लोगे तो काफ़ी है। देन टुमारो नेक्स्ट क्लास आई कैन स्टार्ट लॉन्ग बैकग्राउंड, कुछ और कर लेंगे, मून या स्टार। ओके जेंटलमैन, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडे सेशन। सो होमवर्क कर लेना, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एंड विल डिस्कस फर्दर। इज इट ओके? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू Thank सर। you, sir.